Question is cos x plus cos y plus cos z plus cos of x plus y plus z is equals to this. If you see left side, all the trigonometric function are in addition and on the right side these are in product. यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, दो दो की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसको COD ले लेते हैं, इसको COD ले लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट cos of x plus cos y, then another will be cos of z, cos of x plus y plus z. So cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2, that is what, x plus y by 2, and then into cos of x minus y by 2. Similarly this cos of x plus y plus z plus z by 2, then cos of z minus x minus y minus z upon 2. So what do you get from here? This 2 and this 2 will be multiplied, and make sure, बहुत लोग ये गलती कर चुके हैं, जब मैं होमवर्क चेक करती हूँ ये वाला 2 इससे काटना शुरू कर देते हैं. दिस इज एंगल एंड दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यू कैन नॉट कट, क्योंकि अगर 30 डिग्री है और उसको हम 60/2 लिख के, तो इट डजेंट मीन कि यू कैन कट दिस बाय 2. सो ये गलती प्लीज़ अवॉइड करो. सो यू विल गेट 2 cos x plus y by 2 cos of x minus y by 2, and then this is what, 2 cos x plus y plus 2z upon 2, and this is what, z will be cancel out with z, and cos with नेगेटिव एंगल है और cos of माइनस थीटा आपका cos थीटा होता, तो दोनों चीज़ें प्लस की हो जाएंगी. ये आ गया आपका. अब क्या करना है, जो पार्ट कॉमन है वो कॉमन ले लो, ये वाला पार्ट, ये एंड ये वाला पार्ट. सो इफ़ यू टेक कॉमन यू गेट 2 cos x plus y by 2, so you get cos x minus y by 2 plus cos x plus y plus 2z upon 2. अगेन cos c plus cos d लगा दो. सो 2 cos x plus y by 2, that will give you 2 cos c plus d by 2 and c minus d by 2, minus x minus y minus 2z upon 2. So x plus y by 2 into 2 cos y से y cancel, and this is what, 2, oh sorry it was एंगल हाफ, तो यहाँ पे 2 आएगा और इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, एंड यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर, तो दैट विल बी 4 एट द डिनोमिनेटर. तो दैट इज़ व्हाट, 2x plus 2z upon 4, then cos, दिस इज़ व्हाट, डिनोमिनेटर सेम है तो मेक इट 4, एंड माइनस वाई, माइनस का एक्स एक्स कट गया आपका, तो माइनस का 2y माइनस का 2z आपके पास बच गया. देन ये आपका हो गया 2 cos x plus y by 2 into 2. एंगल से एंगल यू कैन कट, टेक 2 कॉमन, एंड ये आपका हो जाएगा cos x plus y by 2, एंड ये cos of माइनस y plus z by 2. in last step you can write 2 cos x plus y by 2 into ये 2 into 2 आपका 4 हो जाएगा. So this is cos of x plus y by 2 into cos of minus theta is cos theta cos y plus z by 2, which we have to prove. Next is cos x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equals to cot 3x. सो एंगल रिक्वायर्ड इज़ 3 थीटा, यानी कि ये वाला हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको नहीं कुछ भी करेंगे, बाकी दो पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x ग्रुपिंग कर दी हमने. ये हो गया sin 4x प्लस sin 2x, इसकी ग्रुपिंग होगी, एंड यहाँ पे sin 2x एज इट इज़. सो oh this was 4 in question, so this is 4. So cos c plus cos d is what, 2 cos c plus d by 2, that is 3x, and d c minus d 2x, and this is cos x plus cos 3x, then upon 2 sin c plus d by 2, that is what, 3x, and then
cos c minus d by 2 cos x plus sin 3x. ओके, ऊपर हमारा कॉमन है 2 cos cos 3x, सो आई गेट 2 cos x plus 1. नीचे कॉमन है हमारा sin 3x, so I get same at the denominator 2 cos x plus 1. This will be cancelled out, this will give you cot 3x. जिन लोगों को फॉर्मूलाज लर्न हो गए होंगे अब तक, उनको अब ये सम करने में बहुत मज़ा आएगा. नेक्स्ट इज cos थीटा by 2 माइनस cos थीटा 3 थीटा cos 9 थीटा by 2 इन टर्म्स ऑफ साइन. प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में ही चाहिए. सो कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट तो नहीं लग रही क्योंकि एंगल भी डिफरेंट है सारे. तो देर इज़ ओनली वन ऑप्शन, वी आर लेफ्ट विद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 and 1 by 2. सो 2 cos थीटा by 2 and minus half of 2 cos 3 theta cos 9 theta by 2. So here I can write this 2 cos A cos B is what? Cos of A plus B, यानी कि cos theta plus theta by 2 will give you 3 theta by 2 plus minus 2 cos A cos B is cos of A minus B. ठीक है, तो that will be cos theta by 2. Similarly this wala part, this will give you this plus this, so you will be getting 15 theta by 2. So that is cos 15 theta by 2, then minus this 6 and then 3 theta by 2. नेगेटिव आएगा, नेगेटिव will be finished, so this will be cos 3 theta by 2. आई होप आप लोगों को ये आइडेंटिटीज अब तक लगानी आ चुकी होंगी. सो हाफ दिस इज व्हाट cos 3 theta by 2 minus cos theta by 2 minus cos 15 theta by 2 plus cos 3 theta by 2. This will be cancelled out with this. This is half minus cos theta. See, अभी भी हमारा फॉर्मूला डिफरेंस में और सम में चल रहा है, बट हमें प्रोडक्ट पे जाना है. तो नाउ आई कैन अप्लाई बाय टेकिंग माइनस कॉमन cos c plus cos d. cos c plus cos d से तो आंसर नहीं आएगा. कहाँ गलती की है? ओके, देयर इज अ मिस्टेक. इट वाज प्लस 2 cos a cos b gives you 2 cos of a plus b by 2 and plus cos of a minus b. Same here. So this will be plus and this will be minus now, then it's cancelled. So this is what? This is plus. For next step I can write half cos 15 theta by 2 minus cos theta by 2 cos c minus cos d लग गया आपका. that is what? minus 2 sin this plus this by 2, this 15 and 16 upon 4, that is 4 theta sin 4 theta and sin this minus this will give you 14 by 4, that is 7 theta by 2, which we have to prove. So I have taken minus common here, so I am writing here minus, so that will give you plus half into 2 sin 4 theta 7 theta by 2. 2 will be cancelled out with 2, so that is sin 4 theta sin 7 theta by 2, which is the answer. In this question we required without root on right side, meaning by ये दोनों रूट्स हमें ख़त्म करने हैं, यानी कि there should be something square. So लेफ्ट हैंड साइड हमें शुरू करी सॉल्व करनी. ये एज इट इज़, ये एज इट इज़. इफ़ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम हेयर, it's 2 here. If I take 2 common from this step, तो I'll get 1 plus cos 4x. तो 1 plus cos theta क्या होता है? 2 cos square theta by 2. सी यहाँ से आई है ये आइडेंटिटी. cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. So cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. So 1 plus cos 2 theta is
2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे 4 है एंगल, यहाँ पे भी डबल आएगा एंड एक 2 ऑलरेडी है, तो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। सो व्हाट डू आई गेट हियर, 2 प्लस एक 2 आपका रूट से बाहर आएगा और cos स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा ओनली। नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, टेक 2 कॉमन, 1 plus cos 2 theta, then it will give you 2 into 2 cos square theta, which is 2 cos theta, and that is equals to right hand side. Next is prove that cos 6 theta is equals to 32 cos 6x minus cos 4x 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1. If you see on the right side, all the angles are in terms of x only, यानी कि कोई डबल एंगल नहीं, कोई ट्रिपल एंगल नहीं, सिर्फ 1 है जो इनका कोफिशिएंट है एंगल का। तो यानी कि हमें यहाँ पे राइट साइड से कुछ ऐसे कन्वर्जन करने पड़ेंगे जिससे हमारा जो थीटा है वो सिंगल थीटा में आ जाए, 6 थीटा। तो आई कैन डू वन थिंग, अगर मैं इस cos 6x पे फॉर्मूला लगा दूँ cos 3 थीटा का या फिर cos 2 थीटा का, लेट्स से पहले cos 2 थीटा से शुरू करते हैं। cos 2, ये ले लिया मैंने 3x, ये मेरा थीटा हुआ। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ cos क्यों किया, क्योंकि मुझे राइट साइड सारा जो भी चाहिए दैट इन टर्म्स ऑफ cos ओनली। सो नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, ये जो cos स्क्वायर है, cos 3x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं -1। सो व्हाट आई नीड टू डू, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना, दैट इज़ व्हाट 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x एंड देन स्क्वायर -1। अब सिंपल हो गया, एक्सपैंड करना है अब सिंपल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट इज़ व्हाट 16 cos स्क्वायर करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 8 3 24 cos 4x minus 1. So this is what 32 cos 6x plus 18 cos square x minus 48 cos 4x minus 1, which is equals to right hand side. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे cos 4x है, आई हैव टू प्रूव 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सो व्हाट आई नीड टू डू हेयर, मुझे सारा आंसर साइन और कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो या तो साइन में कन्वर्ट कर लो पूरे सम को या कॉस में कन्वर्ट कर लो, बट 1 माइनस समथिंग। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला सपोज मुझे लगाना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा कितना है 2x। अब हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो 2 यहाँ पे लिखा मैंने साइन 2x का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, दैट इज व्हाट 2 साइन 2x cos 2x, सॉरी x ओनली, एंगल ऑलरेडी डबल था। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस होल स्क्वायर है आपके पास ये, तो 4 2 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दिस इज योर आंसर। अब आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी tan 4 है, इधर सिंगल एंगल है, तो यानी कि हमें बार बार मल्टीपल एंगल्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसको लिखो tan 2x, tan 2 थीटा लगा दो, दैट इज़ व्हाट 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब फिर से दोबारा लगेगा फॉर्मूला 2 tan 2x का, तो दैट इज़ व्हाट 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x टू होल स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करना है, अदरवाइज सम बहुत सिंपल है। 4 tan x इंटू 1 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, देन ये पार्ट यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम लेके, तो दैट विल गिव यू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 tan स्क्वायर x, एंड इसका जो एलसीएम वाला पार्ट है दैट इज़ व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आते तो वी कैन कट डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर।
So I can cut this part with this part, and 4 tan x, this part will be there. So 4 tan x, this part will come here. So that is what 1 minus tan square x. Then this is a minus b whole square, 1 plus a square, स्क्वायर तो डबल हो गया यहाँ पे, माइनस 2ab. तो 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x. एनसीईआरटी में 2-3 सम हैं ऐसे जो आपके अगेन एंड अगेन आइडेंटिटीज ब्रेक करते हैं. आई थिंक सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में है. वी विल डू दैट, डोंट वरी. सो ध्यान से करना है बस, और कुछ नहीं है. tan स्क्वायर x, हेंस प्रूव्ड.